دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ پائد صاحب بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس لینگویج میں کام کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لگتا ہے پائد صاحب آتے ہیں. جی پائد صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ہاں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ تو جلدی آ گئے. ہاں بالکل. گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر دیں. میں کھڑی کر چکا ہوں. اور سنائیں، ٹھیک ہے؟ پانی پئیں گے آپ؟ میں پانی پیوں گا. ویری گڈ. جی میرے قابل احترام دوستوں، سوشل میڈیا کے ساتھ ہوں میں آپ کا دوست عالم اسکوکر. امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور خدا ان کی پناہ میں ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرامز لے کر آتے ہیں بائبل اور ہم. آج ہمارے ساتھ خدا کے خادم موجود ہیں، ریورنڈ اعظم ایس کھوکھر، جو MCM یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں اور نیو یارک فلم اکیڈمی سے یہ فلم کی اسٹڈی بھی حاصل کر رہے ہیں. جی بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، خدا ان کے شکر ہے. خدا کا شکر ہونا چاہیے. جی ہر بات میں خدا کا شکر کرو. ضرور. اور کیسا رہا آپ کا سفر؟ سفر بالکل ٹھیک رہا. جب خدا یسوع مسیح ساتھ ہے تو خواہ موت کے سائے کی وادی میں بھی سے گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں. آپ تو جانتے ہیں کتاب مقدس میں لکھا ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی. آج مجھے صبح کسی کا فون آیا. ہاں. وہ مجھے کچھ ایسی چیزیں بتا رہا تھا کہ شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ پنجابی میں پروگرام کیا کریں، پنجابی لینگویج. تو میں نے ان سے کہا کہ میں پاس ٹو نو ویری ویل سو وچ لینگویج یوزنگ. ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ضرور. ہمارے بہت سے دوست ہیں جو کہ پختون بھی ہیں، جی مختلف اقوام سے وہ تعلق رکھتے ہیں، جی لیکن وہ ہندی بڑی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اردو کو سمجھتے ہیں. جی تو اس وجہ سے ہمیں اردو میں کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اردو بھی دو قسم کی ہے. اچھا. ایک پاکستان میں اردو ہے جسے ایک خاص طبقہ بولتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اردو ہے، شاید کوئی اور زبان. تھوڑا سا پیش کروں آپ کے ساتھ. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جی اچانک اس کے بچے نے تھوڑا سا شور مچایا. بچہ تھا 4-5 سال کا تھا. جی تو 4-5 سال کا بچہ جو وہ شور مچاتا ہوا جب آیا ہے تو اسے انگلی سے اشارہ کرا، چپ کرو. تو بعد میں وہ بچہ جب شور مچا رہا ہے تو ایک دم اس شخص نے اسے کہا، اوے وڈے ڈیڈا پاس جاؤ، تمہیں چیچی لے کے دیں گے، ماما نینی نہیں کرتی. میں ڈر گیا. میں کہا یہ صاحب ابھی تو بالکل خیریت سے تھے، بالکل ٹھیک تھے، نہ جانے کون سی دشت آتما جو ہے ان میں گھس گئی. اور وہ پنجابی بولتے بولتے ایک دم ان کا رخ ایسا بدلا. اور باہر ایک بڑی بیوی تھی، بزرگ ماں، وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ اسی زبان کو جو نئی متعارف کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ خاص طبقہ بولتا ہے. کیا بات ہے. تو وہ کہہ رہی ہے، آؤ تمہیں چیزی لے کے دیوں دی. دیوں دی وہ بھی اس طرح کی، یعنی کہ کچھ لینگویج میں. تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی میں تو سمجھا کہ آپ کو کسی آسیب کا سایہ. اچھا. تو میں ڈر گیا. تو اس نے کہا نہیں جناب یہ اردو ہے. تو میں نے کہا شاید یہ کسی خاص قسم کی انہوں نے اپنی اردو کو جی میں تو یہ سمجھا کہ وراثت میں ملی ہوگی. تو میں نے کچھ نامور لوگ ہیں، پادری صاحبان ہیں، میں نے ان کو ٹیلی ویژن میں یہ باتیں کرتے دیکھا ہے. بھائی آئے ہوئے ہیں، بھائی ساتھ بیٹھے ہیں، ہم بھائی کو ویلکم کہتے ہیں. تو میں ڈر گیا یار یہ کس قسم کی اردو. اس کی لغات کی کتاب اگر مجھے مل جائے تو میں اس پر ریسرچ کرنا بہت اچھا سمجھوں گا. آپ جانتے ہیں کہ اردو ایک لگژری زبان ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں، لیکن اصل میں اردو سپیکنگ نہیں، میں نے زندگی میں آج تک اپنے گھر میں اردو نہیں بولی، اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خاندان میں کبھی نہیں. چونکہ میں پنجابی ہوں لیکن میں اردو کی عزت کرتا ہوں. لیکن میں لوگ جو ہیں اصل میں شاید وہ ذہن میں یہ رکھ کر اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جیسا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، یا وہ اس لحاظ سے کہ ان کو اپنا کلچر، اپنی لینگویج پنجابیت پسند نہیں ہے. حالانکہ پنجابی 5000 سال پرانی زبان ہے. کیا بات ہے. اردو کی تو کوئی ویلیو بھی نہیں، نہ ہی اس کی تاریخ اتنی ہے. لیکن
पंजाबी जो है ये 5000 साल पुरानी है वाह। और सिविलाइजेशन से शुरू I know. की। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो किस्म की उर्दू, एक खास तबका बोलता है पाकिस्तान में लड़कियों के भाई हमारे घर में तो एक पास्टर साहब आए हुए हैं, ये भी एक किस्म की उर्दू है। कि अब जो हम उर्दू हम बोल रहे हैं इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये एक यानी कि ठीक ही बोल रहे होंगे, लेकिन वो एक राग की तरह होती है, तो लोग उसे बोलने से अपने आप को यानी कि ना बड़ा खुश महसूस करते हैं। खैर हम तो इसलिए करते हैं कि हमारे बहुत से दोस्त हैं वो सुनने वाले हैं। मेरे लिए हम भी कोशिश करते हैं, हम तो पंजाबी हैं तो हम तो कोशिश करते हैं कि उर्दू अच्छी बोली। भाई साहब मैंने चला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਸ਼ਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ बिल्कुल तो सही क्या है। ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਏ आप यकीन करें कि मैंने अमेरिका से ग्रेजुएशन की है और अभी भी मैं सिनेमाटोग्राफी में न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से कर रहा हूँ। पहले मैं शिकागो में कर रहा था, बाद में यहाँ पर शिफ्ट हो गया। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे कभी ये क्रेज नहीं चढ़ा। अगर मैं अभी अपने घर में फ़ोन करूँ उर्दू ज़बान में, जी माफ़ कीजिएगा उर्दू बोलने वाले हजरात, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो अगर मैं बात करूँ भाई क्या हाल है, तो उन्होंने कहा ना ओ भाई केड़ा तू किधर ना गल करनी हूँ। अगर मैं जाकर कहूँ तो कहेंगे यार डॉक्टर को बुलाओ यार इनको, जिस तरह वो शख्स की मैंने बात बताई तो मुझे ऐसे मैं बौखला गया कि यार ये कोई ऐसे ज़्यादा कि जाओ नी करके आओ। तो ये अजीब के बच्चों को वो कहते हैं कि जी आप घर में कहते हैं कि उर्दू में बात करें, खुद पंजाबी में बात करते हैं, स्कूल में कहते हैं आप अंग्रेजी को सीखें। अजीब खिचड़ी पका रखी है। तो कौम को अपना ख्याल होना चाहिए कि उनकी पहचान होती है कि उस वजह से। लेकिन खैर ये तो एक यानी कि मकसद है, हम बाइबल की तरफ आते हैं, हम जो हमारी ज़िंदगी है जी जी और हम उसका हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये तो नहीं था, वो ये तो एक सच की बात है। लेकिन फिर भी चले बालगात हो जाता है, दुनियादारी है, तो फिर वो समझ जाएंगे जिनको वो जो काल करते ना वो समझ जाएंगे। लव विद पंजाबी या सो हमारा जो सब्जेक्ट है वो था कि ईद पेंटिकॉस्ट। ईद पेंटिकॉस्ट का जो पैगाम है हर मसीही को जानना चाहिए, जो ईमानदार मसीही है। ईद पेंटिकॉस्ट का क्या मतलब है और किस लिए लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये एक बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। और आपने मौजू तो शुरू किया है, लेकिन इसके लिए हमें तारीख को देखना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि तारीख का निजात के साथ क्या करना है। आलम साहब हैरत होती मुझे आप जैसे लोगों पर भी, आप भी उन नीम हकीम खतराए चांद के साथ मिल गए। सर मैं तो इस चीज को पसंद करता हूँ और मैं I like archaeology, तो मैं तो पसंद करता हूँ। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं सनी देओल की फिल्म देखा, अच्छा तो मुझे फिल्म का नाम तो याद नहीं। वो एक मिनिस्टर उसके पास आता है तो उसे धमकाता है, उसे यानी कि अपने रोब के बारे में, शहर के बारे में उसका क्या चर्चा है उसके बारे में बयान करता है। तो उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम नए आए हो, लेकिन वो उसकी इतनी धुलाई करता है। फिर वो उससे पूछता है कि ये मुल्क कब आज़ाद हुआ, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो उससे पूछता है कि फलां जगह पर फलां यानी कि हमारा तराना कौन सा है, यानी कि पूरी कौम की हिस्ट्री पूछता है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता। तो मार मार कर उसका बतंगड़ बना देता है और वो कहता है कि यार तुम जैसे लोगों को, तुम मिनिस्टर बने फिरते हो, तुम्हें इतिहास का पता नहीं कि मुल्क की आज़ादी का दिन कौन सा है। तो इसी तरह ये जो नाम नहाद लोग हैं जो खुद को पादरी कहते हैं, लेकिन अगर उन्हें हिस्ट्री का पता नहीं है, अगर उन्हें इन तमाम चीज़ों का पता नहीं है, तो ऐसे लोगों को कौन पादरी बनाता है? अवामुल नास। दो किस्म के लोग होते हैं, एक को माँ के पेट से खोजा जो होता है इंसान, और दूसरे को दुनिया बना देती है। तो इस वजह से इतिहास को जानना, तारीख को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से पूछें, कोई इंसान 10 साल जेल काटता है, उससे पूछें कि आप इतने साल क्यों जेल में रहे, तो वो तमाम आपको अपनी तारीख बताएगा। और यहाँ तक कि जब वो आज़ाद होगा तो वो अपनी आज़ादी के बारे में बताएगा कि उसने किस तरह वकलाह पर पैसा बारिश की तरह बहाया और पानी की तरह बहाया, किस तरह उसके जो घर वाले थे, ख़ानदान थे, या वो उसे मिलने के लिए जाते, और किस तरह पुलिस, थाना, कचहरी
बहुत लंबी कहानी होगी उसकी आज़ादी के पीछे, तो ये डांस होता है। ये अहमक लोग हैं जो इन बातों को नहीं जानते या मानते, क्योंकि एक मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ये बहुत ही एक जो ना लम्हा फिक्रिया है मुआशरे में, कि एक आदमी जो है वो गांव में रहता है तो वो समझेगा कि शायद यही एक दुनिया है। वो बाइबल उर्दू में पढ़कर समझेगा कि शायद उर्दू में जो कुछ लिखा है या उसके कुछ बहुत से अल्फाज जो हैं वो भी उसी से वो अपने कल्चरली थॉट्स के मुताबिक उसे इंटरप्रेट करता है। जबकि लतीनी, यूनानी और अरामिक और हिब्रू, ये तमाम लैंग्वेजेस अगर आप बोल नहीं सकते लेकिन आपको कम से कम मुतालिया जरूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इस बारे में आपसे आप बात होगी। ये ईद पेंटिकॉस्ट है क्या? बहुत से लोग गैर ज़बानें बोलते हैं। अच्छा सवाल किया आपने। जी, अमाल की किताब में लिखा, अमाल की किताब में इसका वाक़या मिलता है जब बालखाना में जो है रूह कुद्स का नज़ूल हुआ। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हेलो, ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं आपको ये बात बताऊं कि खुदा जो है वो बाग़ अदन में आदम से मिलने के लिए आया करता था। खुदा जमीन पर तो नहीं रहता, ना ही वो आसमानों के आसमान में समा सकता है, तो यहाँ पर मुलाकात के लिए आया करता था। और जब खुदा यसु मसीह इस जमीन पर थे तो वो जैतून के पहाड़ पर दुआ किया करते थे। जैतून के पहाड़ पर ही से उन्होंने अपनी मुनादी का आगाज किया। जैतून के पहाड़ पर ही उन्होंने दुआए रबानी सिखाई। जैतून का पहाड़ ही वो जगह है जहां से सैयदना खुदा यसु मसीह आसमान पर वापस गए और फरिश्तगान ने तमाम उन शागिर्दों से कहा कि यही यसु जो आज तुम्हारी आंखों के सामने आसमान पर गया है, एक दिन ऐसा आता है कि यहीं पर वापस आएगा। जैतून का पहाड़ बाग़े अदन की जगह का एक अहम हिस्सा है। ये बहुत ही एक अहम बात है। अगर हम पुरानी किताबों में पढ़ते हैं, नबियों की किताबें जिनमें आदम की किताब है, नूह की किताब है, उसमें हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ों का पता चलता है। बट सर मैं एक बात से बहुत कंफ्यूज हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ये आपक रफा किताब है। सो मैं तो बलखा गया जब ये बात सुनी तो। असल में इसका एक बेहतरीन जवाब है, मैं आपको बताना पसंद करूँगा। बहुत से ऐसे लोग समझते हैं कि शायद वो जिस गली में रहते हैं वही उनकी दुनिया है। और बहुत से लोग तो जब बाइबल को पढ़ते हैं तो वो समझते हैं कि शायद बाइबल का कल्चर भी जो है या जो इनमें अंबिया करते थे वो भी उर्दू स्पीकिंग थे। जी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, उनके पीछे एक बड़ी लंबी फुर्सत है। एक समंदर के किनारे एक कस्बा था, वहां पर एक बहुत पुराना कुआं था। एक दफा समंदर की बहुत बड़ी ऊंची लहर आई, अच्छा, और एक मछली जो है वो आकर उस कुएं में गिर गई। अच्छा, वहां पर एक मेंढक रहता था। उस मेंढक ने उससे पूछा, ये खातून कहां से आ रही हैं आप? अच्छा, तो उसने कहा, भैया मैं समंदर में रहती हूं। उसने कहा, समंदर ये किस बला का नाम है? उसने कहा, वो बहुत बड़ा होता है। उसने कहा, कितना बड़ा होता है? उसने कहा, बहुत बड़ा होता है। उस मेंढक ने एक गौता लगाया, बहुत नीचे चला गया, अच्छा, और कुएं से फिर वो ऊपर की तरफ आया। उसने कहा, क्या इतना बड़ा? उसने कहा, इससे भी बहुत बड़ा होता है। वो फिर एक गौता और लगाया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, यहां तक कि वो इतना थक गया कि उसके औसान खता हो गए, बौखला गया। और उसने पूछा, क्या इतना बड़ा होता है? उसने कहा, इससे भी बहुत बड़ा होता है। और वो तैश में आ गया। उसने कहा, मछली तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू पागल हो चुकी है, तू मुझे गुमराह कर रही है।
اس سے بڑا سمندر دنیا میں نہیں ہوتا. جہاں پر میں رہتا ہوں وہی ایک سمندر ہے. تم جھوٹ بول رہی ہو کہ اس قسم کا کوئی سمندر ہوتا ہے. یہی حساب ایسے لوگوں کا ہے. آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جب آپ نے یہ بات بتائیں گے تو کہیں گے یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے. اس قسم کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے, لیکن حالانکہ ہرگز ایسی بات نہیں. تو اسی لیے جو کتابیں نبیوں نے لکھی, آدم کی کتاب, نوح کی کتاب, جی, اور اگر آپ ان تمام کتابوں کو دیکھتے ہیں جو آج بھی موجود ہیں, تو وہ کتبہ کے صورت میں لکھی جاتی کتبہ کے صورت میں. اب کتبہ اسے بولتے ہیں, کچھ صفحات نہیں ہوتے کہ آپ اگر قبرستان میں جاتے ہیں تو قبر پر ایک کتبہ لکھا ہوتا ہے. کتبہ لیتا ہوں. اس میں جو نہ تھوڑے الفاظوں میں لکھا ہوتا ہے لیکن بات مکمل لکھی ہوتی ہے, اسے ایک کتبہ کہتے ہیں. جی. تو نبیوں نے تھوڑا تھوڑا جو کر کے لکھا تھا وہ محفوظ تھا. اب میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا ہوں. ضرور. خدا قدوس نے جب پوری دنیا کو پانی سے غرق کیا تو وہ نوح اور اس کی نسل کو بچا سکتا ہے, انہیں محفوظ رکھ سکتا ہے. تو جو اس کا خاص ایک پیغام ہے, کیا اسے وہ پانی میں ڈبو دے گا تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ جانیں کہ خدا کون ہے. تو یہ تمام چیزیں محفوظ کر دی گئی. آدم کے ملبوسات محفوظ کیے گئے. بعد میں وہ چوری ہو گئے. کوش انہیں چوری کر کے بھاگ گیا. کوش جو کہ حام کا بیٹا تھا, کیونکہ حام کی بیوی جو تھی وہ جباروں کی بیٹی تھی, سورماؤں کی بیٹی تھی. اس پر کسی دن بات کریں گے سورما اور جبار میں کیا فرق ہوتا ہے. تو وہ وہاں سے لے کر انہیں بھاگ گیا, کیونکہ جب نوح ان کپڑوں کو پہنتا تھا تو تمام جانور جو تھے اس کے پیچھے چلے آتے تھے. بھائی صاحب, نوح تو اس دور میں منادی بھی کیا کرتا تھا. نہیں, منادی تو نہیں کیا کرتا تھا, لیکن خدا کا راست باز بندہ تھا. اگر منادی کرتا تو کم از کم اس میں سے 10, 5, 4 آج کی دنیا سے 3 گنا زیادہ تعداد تھی. اگر وہ ان کو بتاتا تو کم از کم 1, 2, 4, 5, 6, 10 تو ہونے چاہیے تھے. لیکن خدا نے یہ بھی آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں کہ نوح کا طوفان دنیا میں کیوں آیا. بہت بڑی گہری بات ہے. یہ طوفان کا جو تعلق ہے یہ سورما اور جباروں سے ہی ہے. تو یہ ایک ایسی ان کو موت نہیں آتی تھی. میں ہنٹس دے رہا ہوں بس آپ کو, پھر کسی دن اس پر بات کریں گے. ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ خدا نے آدم کے ملبوسات اور تمام جو کتبے تھے, جو مسودے تھے, انہیں محفوظ کیا. اور وہ آج بھی اہل یہود کے پاس ہیں. اس دور میں جو لکھائی تھی وہ جانوروں کی شبیہ کے ساتھ بنائی ہوتی تھی. جانوروں کی شکلیں جیسے ہوتی ہیں اس سے لکھائی بنائی جاتی تھی. آج بھی ملک مصر میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں, ملک مصر میں جانوروں کی شبیہ کے ساتھ وہ لکھائی بنائی گئی ہے. عبرانی بھی جانوروں کی شبیہ کے ساتھ ہی بنائی گئی ہے. جو عبرانی کی لکھائی آپ کہہ سکتے ہیں, جو ہے وہ جانوروں کی لکھائی سے بنائی گئی. اور اسی طرح پرانے وقتوں میں نبیوں نے تھوڑا تھوڑا مختلف طریقے سے جانوروں کی شبیہ کی طرح لکھا. اور یہ تمام جو باتیں ہیں یہ تالمود میں ہمیں ملتی ہیں. 14 قسم کی تالمود ہیں اور اصلی حالت میں ہیں. حالانکہ آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہودیوں کو کیا آتا ہے, بطخ کو تیرنا سکھا رہی ہے, بطخ کو تیرنا سکھا رہی ہے. تو یہ اس قسم کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے. اور یہ اصل میں یہ تمام چیزیں انہوں نے محفوظ رکھی. اور چونکہ کوش کا بیٹا نمرود تھا اور کوش حام کی بیوی, حام کی اولاد تھا, اور حام کی بیوی جو تھی وہ سورما کی بیٹی تھی. اچھا, جباروں کی بیٹی تھی. جباروں کی بیٹی. اور کوش چونکہ سورما تھا, اور کوش نے کشمیر کے پہاڑ سے اپنی سلطنت کا آغاز کیا. اس کی بادشاہی کا جو آغاز ہے وہ کشمیر سے ہوتا ہے. اور کشمیر چونکہ یہی ہندو کش پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جس کا نام کشمیر ہے. چونکہ کشمیر جو ہے
ये एक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, दरिया उसमें से निकलते हैं और दुनिया में से जन्नत कहा जाता है। आप पास्टर मलका की किताब पढ़कर देखें तो उसमें लिखा है कि अज़वियस बादशाह हिंदुस्तान से लेकर कूश तक और कूश से हिंदुस्तान तक वो सल्तनत करता था और 124 सूबों पर मुश्तमिल थी ये तमाम चीजें। और जब कूश ने अपनी सल्तनत का आगाज कश्मीर से किया तो उसी वक्त इन तमाम जो 100 सूबे थे इनको उसने तरतीब दिया, तकसीम किया और उसका जो अपना बेटा था नमरूद वो भी बाबल को कंट्रोल किए हुए था। ये तमाम बातें आपको तालमुद में मिलेंगी और तालमुद 14 किस्म की है, 14 अक़साम की है तालमुद जो है, और जिनमें बयाबान की तालमुद है और उसमें मिस्र की तालमुद है और उसी में यरूशलेमी तालमुद है और ये यरूशलेमी तालमुद जो है यानी कि वो तमाम चीज़ें 14 किस्म की है, वो आज भी महफूज है और उसमें तमाम ये वाक़या जो हैं वो कलमबंद हैं आदम से लेकर जितने भी कुतबे जो लिखे गए हैं आप उनमें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप रिसर्च कर सकते हैं ज़रूर। तो ये तमाम वो बातें जो हैं हमारी रहनुमाई करती हैं, दुनिया के तमाम जो सिस्टम चल रहा है इसके बारे में हम सीखते हैं कि खुदा कौन है और ये जो दुनिया में अपने आप को खुदावंद कहते हैं ये कौन है और ये किस तरह पैदा होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसी से तो हमें पता चलता और हमारा ईमान मजबूत होता है कि उसकी रान और पोशाक पर लिखा है खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। और ये आप जो जोग्राफी तौर पर रिसर्च कर सकते हैं कि कश्मीर और हिंदू कुश के बारे में ये तमाम जो पहाड़ हैं इनके बारे में अच्छी तरह से आप स्टडी कर सकते हैं क्योंकि जो 124 सूबों पर मुश्तमिल थी इसे सल्तनत जो उसकी थी। तो जो उसका अपना बेटा था नमरूद उसने बाबल को कंट्रोल किया जैसे मैंने बयान किया और बाबल में उसने उस एक इलाका जो बनाया उसका नाम ऊर था। ऊर अब्रानी ज़बान के अल्फाज हैं जिसका मतलब है अरबी में नूर और उसने उस टावर को अपनी पहचान बनाया। और ये वो सोर्सेस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जैतून का पहाड़ कहाँ है। जैतून का पहाड़ ही मोरिया का पहाड़ है। और आपको मैं ये बात बताता चलूं कि मोरिया का जो पहाड़ है इसी पर हाबल कुर्बानी किया करता था और इसी पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है आदम की कुर्बान का भी यहीं पर थी और ये खुदा की पसंदीदा जगह थी क्योंकि जब अब्राहम ने इसहाक की कुर्बानी दी तो खुदा ने खुद कहा कि मैं तुझे बताता हूं कि वो जगह कौन सी है। तो ये जगह जो थी ये खुदा की एक पसंदीदा जगह है। तो इसी जगह पर आदम और हाबिल ने कुर्बानी दी। इसी जगह पर बाप अब्राहम इसहाक को लेकर आया और इसी जगह पर सैयदना खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया और तमाम बनी नौ इंसान के लिए माफी का दरवाजा खुल गया। याद रखिएगा इसी जगह पर जहाँ पर कुर्बानी किया करते थे मसीह यीशु ने अपनी जान की कुर्बानी भी आपके लिए मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए कुर्बानी यहीं पर दी और यहीं से दरवाजा माफी का खुल गया और खुदा राजी हो गया। हैकल की तमीर भी यहीं पर होगी और कुर्बानियां भी यहीं पर दी जाएंगी। अब आप इस तमाम मंजर में अगर देखते हैं तो इसमें खुदा नजर नहीं आता। खुदा हूरब के पहाड़ पर नजर आता है जब झाड़ी में आग लगी है लेकिन झाड़ी जल नहीं रही। पर सब ये हूरब का पहाड़ कहां पर है? हूरब का पहाड़ उस जगह का नाम है जहां पर खुदा कदूस मूसा पर ज़ाहिर हुआ, उसका ज़हूर हुआ कि झाड़ी में आग लगी है, झाड़ी जल नहीं रही और यहां पर उसका ज़हूर पहली दफा ज़ाहिर हो गया। जब मूसा वहां पर पहुंचा तो मूसा ने फरमाइश की कि वो खुदा को देखना चाहता है
लेकिन खुदा ने कहा, आए मूसा, मुझे कोई बशर देखकर जिंदा नहीं रह सकता। और उसने जिद की कि मैं देखना चाहता हूं। जी, असल में इसमें भी एक बात, आम आदमी अगर होता तो वो डर जाता, खौफजदा हो जाता। जी। लेकिन मूसा कोई आम इंसान नहीं था। अच्छा। मूसा एक मिस्री शहजादा था। अच्छा। मूसा ने बहुत ही इल्म सीख रखे थे, जी। यानी कि इल्म उस लिहाज से नहीं मैं कह रहा जैसा कि इब्तदाई तालीम होती, तालीम याफ्ता शख्स था। मूसा आर्किटेक्ट था। मूसा ने मिस्र में बहुत सी बिल्डिंगें तामीर करवाई। मूसा एक मिस्र की आर्मी का जनरल था। मूसा एक यहूदी जवान था, मिस्र का शहजादा था। क्या बात। तो उसे इतनी ट्रेनिंग थी कि वो डरे ना, और उसका नंबर था अब की बार हाय 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 हाय। फिरौन के तख्त पर गद्दी नशीन होने का। मूसा जी, और मेहरबानी करके आप भी सुन लीजिएगा जी। कि फिरौन कोई नाम नहीं, ये ओहदा है। ओहदा है। उस ओहदे पर फाइज होने को थे, लेकिन उससे कत्ल हो गए जज्बात में, और वहां से वो भाग गया। तो अब यहां पर खुदा का ज़हूर उस पर ज़ाहिर होता है। तो इस वजह से वो कहता है कि मैं जब झाड़ी को देखकर नहीं डरा तो अब कैसे डरूंगा। तो खुदा ने कहा कि मूसा, मुझे देखकर बशर जिंदा नहीं रह सकता। तो मैं ऐसा करो कि पहाड़ के नुक्कड़ में जाकर खड़े हो जा। अच्छा। तो मैं वहां से गुजरूंगा और तू मुझे देख लेना। अच्छा। अब खुदा ने उसे पीछा दिखाया, अपना चेहरा नहीं दिखाया। इंसान के जो फिगर्स हैं, हाथ खुदा के भी इस तरह है, क्योंकि इंसान खुदा की शबीह पर है। अच्छा। और मूसा ने सिर्फ पीछा देखा, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। आप जानते हैं क्यों? क्यों? खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसके हाथ पाक हों। लेकिन मूसा के हाथ पाक नहीं थे। वो एक कातिल था। इस वजह से खुदा ने उसे उसको पीछा ही दिखाया। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि पहली दफा यूरोप के पहाड़ पर खुदा का ज़हूर हुआ। पर सब बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह इब्राहिम के पास आया और ये कहते हैं कि पहला ज़हूर हुआ। अहमद लोग हैं वो। अच्छा। क्योंकि अब्राहम के पास जिब्राइल फरिश्ता आता था। जिब्राइल फरिश्ता एक पैगंबर है, एक डाकिया है। अच्छा। उसका काम है पैगाम लेकर आना। वो अब्राहम के पास नहीं आया था। अच्छा। क्योंकि यीशु मसीह नासरी अपनी जात में खुद खुदा है। हालेलुया। तो ये जितने भी माइकल है ना, जिब्राइल, ये खुदावंद के खिदमत गुजार है। खुदावंद को सजदा करने वाले। खुदावंद मालिक है इनका, मालिक है, जिसकी रान और पोशाक पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद यीशु बादशाह। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो वो मिलने के लिए नहीं आते थे। वो फरिश्ता थे जो मुकद्दस मरियम के पास भी आया कि देख तेरा बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। ये फरिश्ता थे। हमेशा खुदा यीशु मसीह ऐसे काम नहीं करते। अगर हम ये कह देते हैं तो हम तो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट और यहोवा विटनेस के साथ मिलकर जिसका लब्बैक करते हैं, हम इसका नारा लगाते हैं कि हम भी हाजिर हैं ये कहने के लिए कि यीशु मसीह फरिश्ता, चूंकि ये उनका ईमान है। खैर इसका तो कोई वजूद नहीं रहा, लेकिन वो यीशु अल मसीह नहीं थे, वो फरिश्ता थे। तो खुदावंद यीशु मसीह लामहदूद खुदा और वो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदावंद है। पहला ज़हूर उसका हुआ यूरोप के पहाड़ पर, और दूसरा ज़हूर जो हुआ वो मुकद्दसा मरियम से बदन लेकर। पहला जो ज़हूर था उसका ज़ाहिर होने का मकसद जो था, मतलब जो था, वो ये था कि बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से आज़ादी दे, उन्हें आज़ाद करे। और दूसरा ज़हूर मुकद्दसा मरियम के बदन से बदन लेकर यहोवा पैदा हो गया ताकि बनी इंसान को गुनाहों की गुलामी से आज़ाद करे।
और भाई साहब तीसरा ज़हूर ये भी बताइए, ये कब हुआ? और तीसरा ज़हूर जो आप पूछ रहे हैं, जी। खुदा का वजूद कब ज़ाहिर हुआ, जी। वो ईद पेंटिकॉस्ट वाले दिन, जब बाला खाना में सब लोग दुआ कर रहे थे, इकट्ठे हुए थे, जी। और उनके अंदर एक खौफ था, बड़ा अजीब किस्म का खौफ था कि हम मारे जाएंगे, हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। जो मसीह यीशु के पैरोकार थे वो भी परेशान थे, और बड़े उनके अंदर एक ऐसा खौफ था, वो छुपते फिर रहे थे। तो एक दिन जब वो 120 लोगों की जमायत थी वहां पर, तो तब खुदा का ज़हूर जो है आग के शोलों की सूरत में उन पर ज़ाहिर हुआ। वो इसलिए हुआ कि ताकि उनका खौफ दूर हो जाए। ये तीसरा ज़हूर था खुदा यहोवा का, कि उनका खौफ दूर हो जाए। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, जैसा तुम खुदा पर ईमान रखते हो मुझ पर भी ईमान रखो, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। ये खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तुम्हारा दिल ना घबराए, क्योंकि वो डरे हुए थे, वो परेशान थे कि न जाने क्या होगा। तो लूका की अंजील में आप ये तमाम वाक़यात पढ़ सकते हैं, और पता चलता है कि जिस तरह खुदा में यीशु मसीह ने कहा कि इब्लीस ने तुम्हें मांग लिया है, अच्छा, ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। उनको खौफ ज़्यादा कर दिया, जो नहीं आता चुराने और मार डालने और हलाक करने को। इसलिए आपको पता है कि इब्लीस का जो काम है वो है खौफ ज़्यादा करना। और पहला ज़हूर जो है वो हूरब के पहाड़ पर गुलामी से नजात के लिए ज़हूर हुआ। दूसरा ज़हूर जो हुआ वो मुकद्दसा मरियम के बदन से यहोवा जिस्म लेकर पैदा हुआ। तीसरा ज़हूर उसका आग के शोलों में हुआ, ताकि सबका खौफ खत्म हो जाए। पहला ज़हूर बनी इसराइल को गुलामी से आज़ादी, दूसरा ज़हूर बने इंसान को गुनाहों की गुलामी से आज़ादी, तीसरा ज़हूर बने इंसान से, बल्कि जो उसके ईमानदार लोग हैं उनसे खौफ को दूर करने की आज़ादी। जब जो खौफ खत्म हुआ तो फिर वो गैर ज़बानें बोलने लगे। और ये वो वाली गैर ज़बानें मत समझिएगा कि जो अक्सर आप देखते हैं, ये वो वाली गैर ज़बानें नहीं थी। वहां पर तकरीबन 17 ममालिक के लोग इकट्ठा थे। अच्छा। और वहां पर 120 लोगों की जमायत मौजूद थी जो ज़बानें बोलने लगे। शागिर्दों ने जहां की बोली बोली, उन्हें वहां पर इरशाद आज़म की तकमील के लिए भेज दिया गया। और यहोवा खुदा ने आग की सूरत में ज़बानें उन्हें अनायत की। उस वक्त तोमा हिंदुस्तान में पहुंचा, उसे वहां की जबान मिली। मत्ती को अरबी जबान मिली, किसी को लतीनी, किसी को इब्रानी, किसी को, यानी कि जिस जिस मुल्क की जबान मिली वो उस जगह पर चले गए। और क्यों उनका जो जुर्रत ना हुई कि वो कह सके कि हमने वहां पर नहीं जाना। जिस तरह मूसा ने जब बनी इसराइल में तकसीम की, जब खुदा ने उसे कहा कि तू जो कनान की जो जगह हैं, जो मुल्क की जगह हैं, उन्हें तकसीम कर, तो जब उसने तकसीम की तो किसी की जुर्रत ना हुई कि उन्हें एक्सेप्ट ना करे। वो इसलिए कि मूसा पर खुदा का रूह था। और इसी तरह जब रूह ने उन्हें जबानें दी तो किसी की जुर्रत ना हुई, सवाए एक शख्स के तोमा के, उसने वो वहां पर नहीं जाना चाहता था। वो इसलिए कि तोमा खौफजदा हुआ कि कूश ने और नमरूद ने और ये शिव शंकर वगैरह, ये जो इस पर भी बात करेंगे किसी, ये बहुत से खुदा उन्होंने वहां पर मुंतखब किए हुए थे। अच्छा। तो इस वजह से उसने वहां पर जाना पसंद ना किया, लेकिन जब रूह ने छुआ तो उसे जाना पड़ा। तो ये है ईद पेंटिकॉस्ट का पैगाम। अगर आज भी कोई ईद पेंटिकॉस्ट का पैगाम नहीं समझता तो आज भी कमरे में बंद है। और जिसे रूह छू लेता है उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। जिसे रूह छू लेता है उस पर खुदावंद की बरकत आ जाती है। मुझे खुदावंद ने छुआ, उसके रूह ने मुझे छुआ,
मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं बहुत सिगरेट पीता था और मैंने जब खुदावंद के रूह ने मुझे छुआ तो मैंने वो सिगरेट छोड़ दी और मैंने आज तक हाथ नहीं लगा। कई दफा डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। जब रूह आपको छूता है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो ये तमाम सोर्सेस से हमें पता चलता है कि ये तमाम जो मामलात आज हमने छेड़े ये क्या है। खुदावंद आप सबको जो है ना छुए। अगर आप खौफजदा हैं तो आप में भी अपने पाक रूह को भेजे ताकि आपका खौफ जो है दूर हो जाए और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपने पाक लहू में छुपाए रखे और तारीख को पढ़ने में आपकी मदद करे। बहुत शुक्रिया।